Morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. अर्चना, अरे वीडियो इधर का अपना मुंह दिखाना है। तुम ही दिखने लगी। वीडियो ऑन किए ना अपना, तो तुम दिखने लगी। इधर करें, वीडियो करें। देखो वीडियो दबाइए। अच्छा ये दबाएं। जाओ तो एंड मीटिंग आ जाओ। जाओ। मैम स्कूल यस, ये तो है। हम लोग कभी खुल गया स्कूल? अभी वीडियो स्टॉप कर दिए हैं। अब बताओ ना कैसे करें। ये तो नहीं आ रहा। वीडियो भी ऑफ कर दिए हैं। ऑन करिए तो ना दिखेगा। ये दिस इज अच्छा अच्छा। यस यस। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. Good morning to you all. Good Board visible है. Board is visible to all Yes, of ma'am. you. Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, this chapter is ready. Yes. Yes. बोलिए. What do you want to speak? Who is speaking? Who is speaking? Who is speaking? Pratyush, what do you want to speak? Pratyush Raj, do you want to say something? No, ma'am. Oh, Good morning, ma'am. good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. In my yesterday class, I have told you that I will take my tomorrow class from the school. School is not open for the students, but we have to report to school and to take your classes from school. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's why I am taking classes from the school, and I request all of you to please mute yourself and open your video. Who is sending emojis? Yes, now start. Lesson 13. All of you go in. Lesson 13. Good morning, ma'am. Okay. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we have studied about Delhi Sultanate. Yes, during the late 12th century, India was divided into many small kingdoms and large states. There was a lack of unity among the Indian rulers, and due to this, of the small state, the ruler of a small state of Gor, Ghiyasuddin Muhammad Tughlaq, popularly known as Muhammad Gori, invaded India and conquered Punjab, Sindh, and a few other states of India. Okay, in
1191 CE, he was challenged by Prithviraj Chauhan and the ruler of Delhi and Ajmer. At that time, Prithviraj Chauhan was the ruler of Delhi and Ajmer, and Prithviraj Chauhan challenged Muhammad Gori. But helped by many Rajput rulers, he defeated Muhammad Gori in the Battle of Tarai, first Battle of Tarai. But in the second Battle of Tarai, with a greater preparation and the help of Jayachand, the rival of Prithviraj Chauhan, Gori defeated Prithviraj in 1192 in the second Battle of Tarai. Though there were many rulers with Prithviraj, he was defeated and killed because the Indian ruler Jayachand helped him, and it was against the country. Next was later on Jayachand was also killed in a battle in 1194 CE, Common Era, that is Common Era. मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गोर विथ ए लार्ज बूटी. बूटी का मतलब आप लोग को बताए थे, बहुत सारा गिफ्ट मिला, मतलब इंडिया को जब जीता तो उसको बहुत सारा गिफ्ट मिला, ये कहने का. He appointed कुतुबुद्दीन ऐबक as his deputy in India. तो यहाँ उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना डिप्यूटी मतलब अपॉइंट करके चला गया, बिकॉज ही हैज नो चिल्ड्रन चाइल्ड, उसको कोई भी बेबी नहीं था, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का डिप्यूटी बनाकर चला गया. But unfortunately, he was in 1206. Muhammad Gori was killed by a Khokhar soldier while he was taking salute from the parade. The command of Indian territory came under Kutubuddin Aibak, who was Gori's slave. Aibak established the slave dynasty in India, and we have already studied about the Kutubuddin Aibak and Iltutmish. And now we will today we will study about Razia Sultan, daughter of Iltutmish. Because due to the absence of any definite rule of inheritance का मतलब राजा के बाद राजा कौन बनेगा, तो मुस्लिम डायनेस्टी में कोई वैसा फिक्स नहीं रहता था, इसीलिए कहता था इनडिफिनिट रूल ऑफ कोई भी डिफिनिट रूल नहीं था, वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे. देयर वाज ऑफन ए सिचुएशन ऑफ चाओस आफ्टर द डेथ ऑफ ए रूलर. कोई भी राजा जब मरने के बाद, चाओस का मतलब होता है हंगामा का स्थिति हो जाता था कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर. Iltutmish had no faith in the capacities of his son to rule. Iltutmish को अपने बच्चों में कोई, लड़कों में कोई कैपेसिटी नहीं दिखता था कि वो लोग राजा बनेंगे. So he nominated his daughter Razia as his successor. Successor मतलब अपने बाद, मेरे बाद रजिया बनेगी. She was an able and strong administrator. Razia was able and strong का मतलब उसको पूरा knowledge था. Razia Sultan, the first ever lady ruler of Indian history. After the death of Iltutmish, the nobles declared his eldest son Rukmuddin Firoz the Sultan. Rukmuddin Firoz मतलब उसके बेटे को उन्होंने राजा बना दिया, but he was murdered only 7 months later and Razia became the king. The 7 month बाद ही उसको मार दिया गया, रजिया जो है सुल्तान बन गई. Razia crushed her opponent. Crush का मतलब खत्म करना, उन लोगों को दबा देना. She gave higher position to non-Turk nobles. Non-Turk मतलब अपनी जाति से अलग हटके दूसरे जो जाति के जो लोग थे, मतलब इंडियंस, उस समय ज्यादातर इंडियंस. She was an able military general and was considered an exceptionally capable ruler. मतलब लड़ाई झगड़ा का भी, लड़ाई करने का भी उसको पूरा अनुभव था, एक्सपीरियंस था, और अब बहुत अच्छी मतलब राजकाज करने का आइडिया था. She used to dress up like a man while going on military expedition. जब वो लड़ाई करने जाती थी तो उसमें जनरली क्या करती थी कि मतलब मेल कपड़े पहनती थी, लेडीज नहीं, मेल की तरफ ड्रेसअप लाइक ए मैन while going on military expeditions. Razia could rule for a short period of 3.5 years. Could rule का मतलब छोटे समय तक ही रूल कर पाई. Only she was killed in a battle in 1240 CE. After Razia, Bahram Shah was made sultan by the nobles. He was killed in 1242 CE. After that, Alauddin Masud Shah ruled from 1242 CE to 1266 CE. Nasruddin Mahmud. In the year 1246, the youngest son of Iltutmish, Iltutmish का जो सबसे छोटा बेटा, became the sultan and ruled for 20 years. Ghiyasuddin Balban was his prime minister as well as the actual ruler. मतलब जो है कहिए कि नसरुद्दीन मोहम्मद उतना कैपेबल नहीं था, तो उसका जो गियासुद्दीन बलबन जो उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, वो राज को देखता था. He was the actual ruler. After the death of Nasiruddin Muhammad in 1266 CE, Balban became the sultan as Nasiruddin Muhammad did not have any son. क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद तो फिर यहाँ वही वाला हाल हुआ, इल्तुतमिश का मतलब नहीं, मोहम्मद गोरी वाला मैन
प्लीज ये बता दीजिए ना कि आप कौन सा पेज पढ़ा रही हैं। जब मैंने स्टार्ट कर दिया तब आप अभी 98 पेज नंबर इज 98, पेज नंबर इज 98. Is it clear? Page number 98. In the 7B, the number of students who are attending the classes is very less. 7A से तो बच्चे ज्वाइन करते हैं, लेकिन 7B से बहुत ही कम बच्चे क्लास को ज्वाइन करते हैं. 7B से. Yesterday I have complained to your class teacher. मैंने आपके क्लास टीचर से बात किया और आपका कंप्लेन भी किया. There are only 38 participants who are attending the classes in both. There are two sections, 7A and B, and the number of participants is only 38. This is very pitiful. मतलब बहुत ही दुखद है. Now, Ghiyasuddin Balban. Balban was a strong and capable ruler. He suppressed his opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism toward the Sultanate. अब कहता है कि वो भी बहुत अच्छा रूलर था बलबन. सप्रेस का मतलब दबाना, ठीक है. सप्रेस का मतलब होता है दबाना. उसने उसके जितने भी दुश्मन थे उनको दबा दिया और उसके बाद जो है क्या किया, ये सब and created an atmosphere of obedience and patriotism toward the Sultanate. सल्तनत के तरफ, towards का मतलब सल्तनत के लिए क्या किया कि ओबीडियंस, जो राजा जो बात कहता है उसको मानिए और उसके बाद जो है क्या करिए, देशभक्ति की भावना से रहिए. मतलब डोंट हेल्प द ओपोनेंट्स ऑफ द सल्तनत के जो ओपोनेंट या दुश्मन है उनकी मदद नहीं करिए. ये कहने का मतलब हुआ. बलबन ended the power of the group of 40 Turkish nobles to consolidate his position. इल्तुतमिश जो 40 टर्किश नोबेल का जो चालीहा बनाया था उसको उसने खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग जो है जो 40 टर्किश नोबेल्स थे, दे वर इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ द सुल्तान. दैट्स व्हाई ही एंडेड द ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबेल्स टू कंसोलिडेट हिज ओन पोजीशन, टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रांग. ही वाज अ सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस. मतलब उसको पूरे न्याय, कंप्लीट जस्टिस में पूरे न्याय पे भरोसा था. ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डूअर वेदर ए कॉमन मैन और ए नोबल. मतलब वो कोई भी चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, अगर कोई गलती करता था तो वो दोनों को बराबर इक्वल सजा देता था. कहने का मतलब ये हुआ, हिज दरबार वाज वेरी डिसिप्लिन. उसका जो राज मतलब दरबार जहाँ वो बैठता था, जहाँ से वो पूरा काम काज करता था, वो बहुत डिसिप्लिन था. मतलब लोग बहुत मतलब डिसिप्लिन, हर काम को समय पे करते थे. कहने का मतलब हुआ, nobody could talk or laugh without his permission or else face punishment. कोई भी मतलब बिना मतलब का बात उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता था. अगर करता था तो क्या होता था, उसको पनिशमेंट दिया जाता था, सजा मिलती थी. और he was sorry, nobody could talk or laugh without his permission or else face punishment. He enhanced the prestige and power of the sultan. Enhance मतलब बढ़ाया. क्या बढ़ाया? प्रेस्टीज और पावर. यस यस, हाँ बोलिए. रोशनी में पराए हैं तो अंधेरे में अपने क्यों लगते हैं? Who is talking? Anjali Singh. Anjali Singh, mute yourself. He enhanced the prestige and power of the Sultan. He safeguarded frontiers, his frontiers by. मैम इसका प्रेस्टीज का मतलब कैसे होता है मैम? प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब इज्जत, ऑनर, दैट इज प्रेस्टीज. ठीक है, प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत, ऑनर, दैट इज प्रेस्टीज. He safeguarded his frontiers by constructing many forts and posting his base guard there. मतलब बहुत सारा किला बनाया और अपने अच्छे गार्ड को वहां रखा कि कोई बाहर से अगर अटैक करे तो उसको रोका जा सके. बलबन डाइड इन 1286. बलबन मैम क्या वो हिंदू का रेस्पेक्ट करता था? ये आगे पता चलेगा आपको. इट इज गिवन इन द बुक. ओके, अभी आपको देगा, अभी आपको देगा कि वो क्या करता था और क्या नहीं करता था. तो इसके पहले इल्तुतमिश का तो आपने पढ़ लिया कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता था, वो स्टंस सुन्नी था तो शिया का भी नहीं करता था और हिंदुओं का भी नहीं करता था.
अब बलबन का को देगा कि हाँ वो करता था कि नहीं करता था। मैम, और रज़िया आफ्टर ही सुल्तान? डेथ रजिया सुल्तान करती थी, ये तो पहले ही बता दिया आपको कि उसने शी गेव हायर पोजीशन टू नॉन तुर्क नोबेल, जो लोग तुर्क नहीं थे उनको भी उसने हायर पोजीशन दिया था, इसलिए इसका मतलब है कि वो करती थी, लेकिन ये नहीं करता था। बलबन died in 1286. After his death, a situation of confusion prevailed in for some time. In 1200 prevail मतलब आया, occurrence जिसको कहते हैं ना, हो जाना, prevail मतलब सामने आ जाना, prevail मतलब will मतलब उठना, पर्दा उठना, जैसे उससे पहले prevail for some time. In 1290 Jalaluddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. जलालुद्दीन नाम था, उसने जो है ओवरथ्रू का मतलब जो बलबन के जो सक्सेसर थे, बलबन के बाद जो उसके घर के जो बच्चे जो राजा बने उनको हटा करके, दैट इज नोन एज द ओवरथ्रू। द वीक एंड इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब लायक नहीं थे, सक्सेसर ऑफ बलबन एंड कैप्चर द थ्रोन। अब जलालुद्दीन खालजी। मैम यहाँ पे Yes. अलाउद्दीन मौसद शाह का दिया हुआ है 1242 CE to 1262 CE, और मैम नसरुद्दीन महमूद का भी 1246 CE to 66 दिया हुआ है। इसका ना तो वो दोनों का ये जो है उधर किया, उसके बाद जो है बाद में ये जो है बना, पहले वो बन गया उसके बाद ये बना, वो अलग जगह बना, ये अलग जगह, इसीलिए दिया हुआ है। इज इट क्लियर? वो देने का मतलब ये हुआ कि दोनों दो जगह बने, इसीलिए ओके मैम। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, और कुछ नो पूछना है नो मैम। किसी को? अगर एक टैली करता है तो इसका मतलब कि दोनों एक जगह कैसे होगा, एक कहीं और बनेगा एक कहीं और बनेगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप लोग का होता है ना, एक दिन बहुत सारे बच्चों का बर्थडे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से, लेकिन सभी अलग अलग हैं, तो प्लेस अलग अलग है, लेकिन उस समय राजा जो है कहीं, कोई कहीं का राजा कोई कहीं का राजा। इज इट क्लियर? प्लेसेस आर डिफरेंट, जगह अलग अलग। उसके बाद भी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एनीवन हैज? नो। नाउ जलालुद्दीन खलजी, he captured the throne at the age of 70 by murdering the last two successor of Balban. murdering का मतलब मार, ठीक है, मर्डर का मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को। two successors of Balban. He founded the Khalji dynasty in 1290 CE. He was assassinated by his nephew Alauddin in his military expedition. अब कहता है कि जो जलालुद्दीन खलजी जो था वो जो है 70 इयर्स के इसमें राजा बना, 70 साल का था। लास्ट टू सक्सेसर बलबन के जो दो मतलब लास्ट जो उसके बलबन के परिवार के जो राजा बने उन दोनों को मार करके और ये जो है राजा बन गया। और इसको जो है इसको हेल्प करता था उसका जो नेफ्यू मतलब भाई का बेटा जो बोला जाता है अलाउद्दीन, उसका नाम था, इन हिज मिलिट्री एक्सपेडिशन, क्योंकि वो बहुत एज का था और अलाउद्दीन यंग था, उसका हेल्प करता था। अलाउद्दीन वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, एम्बिशियस मतलब कि आगे बढ़ने का आकांक्षा रखने वाला, कि हम किसी तरह आगे बढ़ेंगे, राजा बनेंगे। He wanted to become the Sultan. Yeah, he treacherously murdered his uncle. Treacherously मतलब धोखे से उसने क्या किया, अपने अंकल को मार दिया। अंकल को जलालुद्दीन खलजी को मार दिया। Who was coming back after defeating the ruler of देवगिरी के राजा को हरा कर जब वो वापस आ रहा था उस समय उसको मार दिया। Thus he captured the throne in 1296 CE. और 1296 CE में राजा बन गया। अलाउद्दीन खलजी, he was a brave and skilled administrator. Here अलाउद्दीन खलजी का कह रहा है कि ब्रेव और स्किल, ब्रेव मतलब बहुत बहादुर, स्किल का मतलब अच्छी तरह से राजकाज करने वाला। लाइक अलेक्जेंडर, he wanted to conquer the whole world. अलेक्जेंडर का मतलब सिकंदर, यहाँ अलेक्जेंडर का मतलब हुआ सिकंदर की तरह वो पूरे दुनिया को जीतना चाहता था। He captured गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ etc. in the north and देवगिरी, वारंगल, मदुरई and a number of states in the south. मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो बढ़ गया था। To safeguard his sultanate from the invasions, he had a well-trained and well-equipped army. अपने मतलब सल्तनत को बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए उसके पास जो है बहुत वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप। वेल ट्रेंड का मतलब अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया हुआ, इक्विप मतलब सारा तरह का लड़ाई का सामान रखा हुआ था। He kept full record of his soldiers, हुलिया एंड दाग, वो अपने सोल्जर्स का पूरा रिकॉर्ड रखता था। हुलिया और दाग का मतलब होता था सोल्जर्स पे, हुलिया कैसे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, दिस इज हुलिया,
और दाग का मतलब उनके बॉडी पे कोई ये स्पॉट लगाया जाता था, जिससे कि वो उसका जो भी मतलब सैनिक है वो काम छोड़कर कहीं भाग नहीं जाए। इसका मतलब यही था, हुलिया और दाग लगाने का मतलब यही था। टू अवॉइड एनी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसके बदले कोई और ना आ जाए, दुश्मन का कोई सिपाही नहीं आ जाए। He kept full record of his soldiers to avoid any substitution. Soldiers were paid in cash and were given many other facilities. और सिपाहियों को वो जो है क्या करता था, जो पेमेंट देता था वो कैश में देता था, मतलब पैसा दे देता था और बहुत सारी फैसिलिटीज भी उनको देता था कि राजा मैं मतलब काम करने के लिए फैसिलिटी मतलब सुविधाएं की, कोई वो लालच में, ये सारा करने का मेन मोटिव क्या था कि वो लालच में नहीं आए। उसके बाद कहता है Alauddin did not allow the nobles or the people to amass money. Amass मतलब इकट्ठा करने के लिए, वो नोबल्स को या लोगों को ये अलाउ नहीं करता था कि आप बहुत ज्यादा पैसा रख लीजिए, amass money. So he taxed them heavily. जिनके पास ज्यादा पैसा रहता था उनसे खूब ज्यादा टैक्स लेता था। हेविली का मतलब ज्यादा टैक्स लेता था। He banned the sale and consumption of wine, और वाइन का सेल और कंजम्पशन मतलब बेचना और पीना दोनों मना था। He organized an effective and efficient system to control revolts against him. Organize मतलब बनाया, effective, effective मतलब प्रभाव, efficient मतलब कि जो अगर कोई उसके खिलाफ करता था तो उसको वो तुरंत दबा देता था। He was the first Muslim ruler who did not tolerate the interference of religious leaders. जैसे 40 चालिहा का ग्रुप एक बना था ना, इल्तुतमिश से बनाया था, तो इसने ये तो पहला मुस्लिम रूलर था जिसने कि ये जो है उसने कह दिया था कि नो डोंट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ही वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ही वांट टू एडमिनिस्टर हिज एम्पायर इंडिपेंडेंटली, मतलब विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द एनी रिलीजियस मतलब नोबल्स, ये कहने का मतलब है जो मुस्लिम थे। तो लाइक उलेमास एंड मुल्लास इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब जो आर्थिक सुधार किया उसके लिए अलाउद्दीन का बहुत फेमस है। कैसे है देखिए, ही फिक्स द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आप लोग का आता है, मेंशन राइट, मेंशन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज, मतलब डेली जो यूज का जो सामान था उसका जो है दाम फिक्स कर दिया था, कोई उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता था, अगर लेता था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। He also introduced grain storage and rationing system. ग्रेन स्टोरेज मतलब अनाज जमा करके रखना, और राशनिंग जिसको जितना जरूरत हो उतना उसको दिया जाए। There were different market places for different commodities. अब अलग अलग सामान बेचने के लिए अलग अलग मार्केट प्लेस थे, ये कहने का मतलब था। Severe punishment was given to those who waited less or cheated the buyers in any way. सिवर मतलब कड़ा सजा दिया जाता था। किसको कड़ा सजा दिया जाता था? जो लोग अगर जो है क्या करते थे, अगर कम तौलते थे या क्या करते थे, बायर को जो खरीदार को धोखा देते थे, मतलब गलत सामान दे दिए तो ये हुआ धोखा देना। एनीवे किसी तरह से अगर कम तौले या धोखा दिए, गलत सामान बेच दिए, सड़ा हुआ या गलत सामान बेच दिए उसका। मार्केट कंट्रोलर्स वेर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। व्यापारी जो लोग थे तो उनको देखने के लिए, सुपरविजन का मतलब होता है देखना, तो मार्केट कंट्रोलर, मार्केट को जो लोग कंट्रोल करते थे, घूमते रहते, वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी जो है अपॉइंट करके रखे रहता था। वेयर हाँ देयर वेर डिफरेंट, सॉरी, market controllers were appointed for strict supervision over the traders. He also reformed the revenue system. Revenue system को भी उसने क्या किया, रिफॉर्म किया। Is it clear? Land revenue was fixed according to the size of land holding. Land holding के हिसाब से land revenue भी fix किया गया था। The state share was fixed at 50% of the total produce. Total produce का मतलब जितना उगता था उसका 50% राजा ले लेता था। The life of the Hindus was miserable because they had to pay more taxes than the Hindus. देखिए यहाँ पर भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था हिंदुओं के लिए, तो देखिए यहाँ हिंदुओं के लिए इनका अच्छा बिहेवियर नहीं था, बिकॉज उनको से ज्यादा टैक्स लेता था। The life of the Hindus was miserable because they had to pay more taxes than the Hindus. मुस्लिम से ज्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था, इसलिए इनकी स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, मिजरेबल थी। Do you know when Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her, so he attacked Chittor. He defeated the Rajputs,
क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज कमिटेड जौहर। जौहर का मतलब वो लोग अपने आप को मार देना, आग जला करके। मैम रिटेल प्राइस का मतलब सिंपल कोई चीज का जो हम लोग जो लेते हैं, कोई भी सामान आज भी आप खरीदते हैं तो जो प्राइस मैम- लेते हैं एक का, दैट इज रिटेल प्राइस, दैट इज रिटेल मैम प्राइस। मैम ये जो रानी पद्मिनी थी वो मैम हाँ, हाँ। 20,000 रानी के साथ ना जौहर की थी। हाँ, यस यस, 20,000 के साथ की थी। 20,000 मतलब औरत, लेडीज और उसमें बच्चे भी थे, चिल्ड्रन एंड लेडीज एंड चिल्ड्रन, दे बोथ इन दैट ग्रुप। एंड अदर लेडीज कमिटेड जौहर। जौहर का मतलब जानते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जौहर? खुद बताएगा? को ही मैम मैम हाँ, जो बोलिए, विडो बोलिए। होती है मैम वो आग में मैम आग नहीं, में वो उसने- सती सिस्टम था, वो सती मैम सिस्टम। मैं बताऊं, हाँ, बताइए। मैम वो लोग कि कोई और आके उनके पति के अलावा, उनके राजा के अलावा कोई और उनको आके ना छुए, इसलिए वो जौहर कर लेती थी। वो बड़ा सा यज्ञ करती थी। अगर सीक्रेट राजा जीत जाता था तो उसमें वो नारियल डालती थी। हाँ, हाँ। अगर नहीं जीतता था, खबर आता था कि अच्छा। राजा मर गया, तो वो लोग उसमें कूद कर जान दे देती हाँ, थी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेयर फ्रॉम यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मैम से ये मिला? बुक के चैप्टर 10 में भी दिया हुआ है। मैम फ्रॉम माय ट्यूशन टीचर who taught me. फ्रॉम योर ट्यूशन टीचर। मैम ये बुक में भी दिया हुआ है, डू यू नो में पेज चैप्टर 10 के। चैप्टर 10 में तो नहीं दिया हुआ है इसको। मैम एक जगह दिया हुआ है। मैम इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, वो नहीं, थोड़ा इतना सा डिटेल दिया में हुआ तो है। नहीं दिया, वहां दिया है सती सिस्टम, मैम सोशल इवेंट्स लाइक मैम सती लिखा सिस्टम, हुआ है चाइल्ड द मैरिज, वुमेन ऑफ ये दिया है। रॉयल फैमिली। मैम लिखा हुआ है एंड मैम मेरे दादा द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड इन द इंडियन सोसाइटी, ये लिखा हुआ है उसमें। मैम डू यू नो में द वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जौहर जौहर, immediately हाँ, in the हाँ, fire to हाँ, protect हाँ, their honor if their menfolk were defeated or killed in a battle. यस यस, दिस हैज बीन गिवन। मैम यस, लेकिन इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है बस। मुझे दादाजी ने एकदम डिटेल हाँ, में इतना डिटेल में। मैम अभी मैम वेरी गूगल गुड, से बहुत सर्च बढ़िया। करने के बाद पता चला अलाउद्दीन मौसद शाह का मैम बुक में मिसप्रिंट हो गया मैम। 1242 CE टू 1246 CE होगा। हाँ, ठीक है, मैम बढ़िया। The life of the Hindus was miserable because they had to pay more taxes than the Muslims. Do you know? फिर से पेज नंबर 99 को देख लीजिए। When Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, the queen of Chittor, he wanted to marry her. So he attacked Chittor. He defeated the Rajputs. Queen Padmini and other ladies committed job. The story of Padmini, the queen of Rana Ratan Singh of Mewar, was vividly described by मलिक मोहम्मद जासी इन हिज एपिक पद्मावत में उन्होंने लिखा है पद्मिनी के बारे में। मैम इस पे तो फिल्म भी बना हुआ है। क्या बोली? हाँ, यस, फिल्म भी बनी है। नाउ पेज नंबर 100 में एक मैप दिया हुआ है, जरा देख लीजिए, एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खलजी का। ओपन पेज नंबर 100। देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं? इट इज एन ओल्ड मैप ऑफ इंडिया का पुराना मैप है। यस, ये इंडिया का पुराना मैप है, उस समय जब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारा इंडिया का ही पार्ट था। तो उसका जो देखिए यहाँ तक लाहौर से लेकर के और नॉर्थ में मदुरई नीचे तक जो येलो एरिया है वो अलाउद्दीन का एरिया नहीं, और बाकी जो है येलो छोड़ दीजिए और ऑरेंज एरिया जो है वो पूरा अलाउद्दीन का एरिया है। इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करना है आपको। You have to do practice. Yes, it is very important map. अलाउद्दीन का एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड एक्सटेंट एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खलजी, ये दोनों जो है इसका पेज का बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको ध्यान देना है। और पेज नंबर 1 में भी कोई जो दिया हुआ है आप लोगों का, पेज नंबर 96 में देख लीजिए। There's पेज नंबर 96, go on पेज नंबर 96। Delhi Sultanate in the 13th century. A map has been given there on page number 96. देख रहे हैं आप लोग सभी? यस सर, नो? यस मैम। देख रहे हैं? यस मैम। ये जो है, हाँ, तो ये जो है आप लोगों को ये भी कभी कभी जो है ये आता था, ये रेड एरिया है, ये दिल्ली सल्तनत का एरिया है जो रेड लाइन से किया हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? यस जो रेड Yes, ma'am, डॉट, ma'am. हाँ, डॉट किया हुआ है, ये जो है दिल्ली सल्तनत का एरिया है, इतना के अंदर था।
तो ये जो है आप लोगों को कभी कभी इसमें का जो देख लीजिएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कभी कभी ये जो है आ जाता है, ये भी पूछने मतलब लोकेट द प्लेसेज आ जाते हैं। इज इट क्लियर? लोकेट द प्लेसेज, प्लेसेज का लोकेट करना आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और क्लास को जो है शेड्यूल जो करेंगे, कभी 9 बजे भी कर सकते हैं, कभी 9:10 भी कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए आप लोग जो है 9 बजे भी, कभी कल जैसे कल हम शेड्यूल करेंगे क्लास 9 बजे, और उसके बाद फिर अगले बार में 9:10 में करेंगे, ठीक है? नाउ कम सानवी शर्मा, सानवी शर्मा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, पेज नंबर 99 निकालिए, पेज नंबर 99 निकालिए। यस मैम। हाँ, यस मैम। हरियाणा में, पानीपत अभी हरियाणा में पड़ता है। 99 का जो है लास्ट पैराग्राफ जो है, अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पढ़िए तो इस पे Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alauddin is famous for his economic reforms. He fixed the maximum retail price of the goods of daily use. He also introduced grain storage and rationing system. There were different marketplaces for different commodities. Severe punishment was given to those who weighed less or cheated the buyers in any way. Market controllers were appointed for strict supervision over the traders. He also reformed the revenue system. Land revenue was fixed according to the size of landholding. The state's share was fixed at 50% of total produce. The life of the Hindus was miserable because they had to pay more taxes than the Muslims. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ ये बताते हैं, 7A से ही तो बच्चे रहते हैं ज्यादा। प्रत्यूष राज, चलिए। ये जलालुद्दीन खलजी, स्टार्ट। चलिए, जलालुद्दीन खलजी, पेज नंबर 99। यस। He captured the throne at the age of 70 by murdering the last two successors. I'm not getting your voice. प्रत्यूष। मैम प्रत्युष का स्पीकर म्यूट हो गया था, मैं पढ़ूं? He founded the पढ़ने तो दो। Khilji dynasty in 1290s Common Era. He was assisted by his nephew Alauddin in his military expeditions. Alauddin was a very ambitious person. He wanted to become the Sultan. He treacherously murdered his uncle who was coming back after defeating the ruler of Devgiri. Thus, he captured the throne in 1296 Common Era. So, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज मैम मैं पढ़ूं? शशांक शेखर, शशांक शेखर, शशांक शेखर 7B। Yes, ma'am. हाँ, शशांक शेखर। रजिया सुल्तान, चलिए स्टार्ट करिए। रजिया सुल्तान, शशांक शेखर। After the death of Iltutmish, the nobles declared his eldest son Rukunuddin Feroz the Sultan, but he was murdered only 7 months later, and Razia became the Sultan. Razia crushed her opponent. 10 बजे। Capable ruler to dress up like a man while going on military expedition. Razia could for a short period of 3.5 years only. He was killed in battle in 12,040. After Razia, Aram Shah 1240 to 40 Common Era was made Sultan by the nobles. He was killed in 1242 Common Era. After that, Alauddin Mahmud Shah ruled from
12,042 common era to 1,266 common बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। उत्पल, उत्पल आप सुन रहे हैं? उत्पल, यू आर लिसनिंग? उत्पल और आदित्य राज सिंह और सलोनी सिंह, सलोनी राज 7B, सुन रहे हैं? नो, सलोनी राज। मैम Yes, ma'am. हाँ, who is उत्पल? Yes, ma'am. इट्स, हाँ, उत्पल गियासुद्दीन बलबन को पढ़िए। उत्पल Yes, ma'am. पढ़िए, अपना वीडियो ऑन करिए कम से कम। Yes. हाँ चलिए पढ़िए। Balban was a strong and capable ruler. He suppressed all opposition and created an atmosphere of a confidence and patriotism toward the Sultanate. Balban ended the power of a group of 40 Turkish nobles to consolidate his position. He was a sultan who believed in the complete justice. He did not spare any wrongdoer, whether a common man or a noble. His darbar was very disciplined. Nobody could talk or laugh without his permission or else faced punishment. He enhanced prestige and the power of the Sultan. He safeguarded the frontier by the constructing many forts and the posting the best guard there. Balban died in 1286. After his death, a situation of a confusion prevailed for some time. In 1290 CE, Jalauddin overthrew weak and incapable successor of a Balban and captured the throne. ठीक है, सौम्या शेखर सिंह नाउ, सौम्या शेखर सिंह। यस मैम। सौम्या शेखर सिंह, यस, अपना वीडियो ऑन करिए सौम्या शेखर सिंह। हाँ चलिए, इल्तुतमिश को पढ़िए, पेज नंबर 97। He made Delhi his capital at the time of becoming Sultan. He was confronted with many problems, but he faced them bravely. He defeated his many rivals, Yal Doj of Ghazni and Q Becha of Sindh and Multan. Istutmis was an able and sedued military administrator. He liberated the Turkish Empire of Ghazni and other foreign powers and consolidated it efficiently. He diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mughal Mongol conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah of Khwarizm, who was being chased by Genghis Khan on the pretext that Delhi's climate would not suit him. Istutmis made many administrative reforms to strengthen his hold on Delhi Sultanate. He organized a group of 40 Turkish nobles known as Chaliha. He divided his empire into many iqtas for administrative efficiency. He introduced silver coins, tanka, and copper coins, jital. बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन किसी का है? किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम। वांट टू आस्क, क्या है बोलिए। मैम हुलिया और दाग मैम एक बार एक्सप्लेन कर सकती हैं फिर से? हाँ, हुलिया और दाग एक्सप्लेन कर